अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप लोग? ठीक हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी क्लास स्कूल में नहीं हो सकेगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके वीडियो एक बनाकर तो समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज़ूम डाउनलोड कर रही हूँ, तो उस पर फिर आपकी मैं एक ऑनलाइन क्लास ले लिया करूँगी। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है अल्काइंस। तो आपके पास आपको जैसे कि मालूम है अल्काइंस के बारे में, वी ऑलरेडी नो कि इट इज़ ट्रिपल बॉन्ड. It contains triple bond. First of all, we call them alkynes because of triple bond in them. ठीक है. As you know, which hybridization is present in alkyne? sp. General formula CnH2n minus 2, right? Unsaturated compounds contains how many pi bonds? 2 pi bonds and 1 sigma bond. And what else? The simplest member is called acetylene. Now, can you write the structural formula for any butane? For example, 1 butane. We have 4 carbons in butane. So, how to make triple bond? By removal of hydrogens. So, first of all, check the valency of carbon. It should be 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, fine. Now write down hydrogens. This is the structural formula. And what about condensed? CH2 CH3. So this is the formula for 1 butane. 1 2 3 4. If we number these carbons, 1 2 3 4, so at one carbon this triple bond is present. That's why it is called 1 butane. If you want to write 2 butane, so you have to draw the triple bond at number 2 carbon. 1 2 3 4, and triple bond will be at carbon number 2. Then again satisfy the valency. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Draw hydrogens. And condensed formula will be like this. Now you can write down any structure formula of any alkynes, right? So come to your example number 12.4. Here it is, write structure formula for alkynes. Draw structure formula for 1 butane, 2 butane. So you can write down the structure formula for 1 butane and 2 butane. And if we want to try another example of suppose 3 hexane. So how can we write this? First of all, write down 6 carbons, because we know in hexane, hex means 6. Hex means 6. So 6 carbon, 1 2 3 4 5 6. So what is meant by 3? 3 means that carbon which contains the triple bond. Ine means triple bond, and 3 means that carbon which contains the triple bond. So first step should be numbering that carbon. 1 2 3 4 5 6. Okay, 1 2 3 4 5 6, right? Now at number 3 carbon you have to draw the triple bond. 1 2 3. Now this is the triple bond. The next step will be to satisfy the valency of carbon. So 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4. The next step will be write down the hydrogens on the available valencies. Next, write down the condensed. This is the structure formula, and if you are asked to write down the condensed formula, then you will write down like this. Okay. Now I think you can write down
any structural formula for alkynes. Now next topic is your general method of preparation of alkynes. Now what do you know about preparation of alkynes? We have how many methods? Two methods for the preparation of alkynes. First method is by dehydrohalogenation of vicinal dihalide. Now there are three terms to understand in this. D means remove, hydro means hydrogen, halogen means halogen, right? Removal of hydrogen and halogen. Now from where? Vicinal dihalide. Vicinal means halogens on adjacent carbons. Di means two, halogens means halogen, any halogen, chloride, fluoride, chloride, bromide, iodide, right? Now how will you make alkynes? By removal of hydrogen and halogen from vicinal dihalide. Now first of all write down vicinal dihalide. Any halogen. आपकी बुक में क्लोराइड है, सो हम क्लोराइड लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. Now this is 2 chloride and on 2 carbons. 1 2 3 4 1 2 3 4. This is called vicinal dihalide. इसको मैं इसको ऐसे लिखूं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए. This is called vicinal dihalide. Vicinal means adjacent carbons. Dihalide means 2 halogens on the adjacent carbon, right? Now what we are going to do, we have to remove hydrogen and halogen from this compound. Now you will think that which hydrogens we are going to remove. Look at this. If we remove only 2 halogens from here, if we remove only halogen, we will get double bond, right? But we are going to prepare triple bond, so we have to remove 2 more hydrogens to get the triple bond over here. This is not an easy task, and we have to use alcoholic potassium hydroxide to remove these halogens from here, right? This is two-step reaction. Two-step reaction means in first step we will remove 1 halogen from the carbon, right? From here, 1 halogen from here. 1 halogen from here, right? When this bond will break, right, this chloride will go there in potassium chloride. This chloride, when removed, it will combine with this carbon, forming potassium chloride, leaving this valency over here, electron over here, and this electron will make a bond with this carbon, a double bond, right? But you can see from here we have 2 hydrogens over here. So when carbon is making double bond with this carbon, जब यहाँ double bond बनेगा तो obvious सी बात है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा. यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो किसके साथ जाएगा? इस OH के साथ जाएगा और बना लेगा वाटर. ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? अब जो ये ग्रुप बना है, ये जो कंपाउंड बना है, इसे हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड. इसे कहते हैं विनाइल क्लोराइड. इसको याद रखिएगा, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड. उसके बाद आ जाइए. अच्छा, ये जो हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड का अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें, नेमिंग देखें 1 2, तो इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोईथेन. 1,2 डाइक्लोरोईथेन. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हमारे पास अभी भी एक क्लोराइड मौजूद है जो हमने रिमूव करना है यहाँ से, और हाइड्रोजन रिमूव करनी है यहाँ से. आप एक चीज़ नोट कीजिए कि क्लोराइड अगर इस कार्बन से गया है तो हाइड्रोजन इस कार्बन से गई है, ठीक है? और अगर जब नेक्स्ट स्टेप में क्लोराइड इस कार्बन से जाएगा तो हाइड्रोजन इस कार्बन से जाएगी. आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्लोराइड मौजूद है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है? और आपने देखा कि ये क्लोराइड निकल गए, इस पोटेशियम के साथ गया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुई और इस OH के साथ मिलकर उसने बना लिया वाटर. नाउ अब हमारे पास से यहाँ से दोनों क्लोराइड
और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन्स निकल गए और हमारे पास बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, समझ आ गई आपको यहाँ अच्छी तरह से। उस दिन मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी कि जब भी आपके पास अनसैचुरेशन होती है, जिस जगह पर भी अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारे पास जो भी रिमूवल या एडिशन होती है वो उसी जगह पर होती है। ठीक है, बाकी चेन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये इथेन था यहाँ पर हमारे पास, तो हमें मिल गया इथाइन। अगर हमारे पास यहाँ कोई और चेन होगी, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि 1 ब्यूटाइन से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की जाए, 1 ब्यूटाइन से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके आप कौन सा 1 ब्यूटाइन हासिल करने के लिए आपको कौन से कंपाउंड से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी पड़ेगी। तो आप इसको कैसे बताएंगे? आप कहेंगे कि हमारे पास जिस जगह पर हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए वहाँ पर हमारे पास 2 हेलोजेंस लगी होंगी विसिनल कार्बन्स के साथ, तो हम यहाँ से 2 हेलोजेंस रिमूव करेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स रिमूव करेंगे, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हम ये 2 हाइड्रोजन्स जाएंगी और यहाँ से हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन्स जाएंगे। जब ये जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। आप देख सकती हैं आराम से कि ये देखें, इस एरिया से आपने निकाला इन 2 कार्बन से विसिनल आपने डाई हैलाइड से रिमूव किए 2 हाइड्रोजन्स, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की, हाइड्रोजन भी रिमूव किया, हेलोजन भी रिमूव की। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, तो आपको मालूम है कि फिर यहाँ क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको कहा जाए अगर कुछ भी बनाने के लिए, कोई भी एल्काइन बनाने के लिए, तो आप आसानी से इस मेथड से एल्काइन बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल फॉर्म एल्काइन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH, तो आप इसमें देखें गौर से, यहाँ पे CH3 CH2Br है और यहाँ है CH2 CH2Br। ये जो है बेटा, ये है विसिनल डाई हैलाइड, ये सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन्स हैं। तो यहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये निकाल भी देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव कर देते हैं, तो इसमें हमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड मिल पाएगा। लेकिन हमें क्योंकि प्रेपरेशन करनी एल्काइन की, सो हमारे पास 2 हेलोजेंस होने चाहिए जो 2 स्टेप्स में रिमूव होंगे और हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल में अब आपको पता चल गया कि हमें एल्काइन हासिल करने के लिए हमें डबल एलिमिनेशन करनी पड़ती है मौलिक आइटम्स की, यानी कि हमें यहाँ से 2 हेलोजेंस और यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स रिमूव करेंगे तो एल्काइन मिलेगा। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हेलोजन हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स। अब आप देख सकती हैं कि यहाँ टेट्रा का लफ्ज़ आ गया। टेट्रा मतलब होता है 4, यानी कि जैसे अभी आपने पिछले रिएक्शन में देखा कि हमने यहाँ से 2 हेलोजेंस, यहाँ से हमने 2 हेलोजेंस और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए। इन केस अगर आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लगे हुए हों तो भी सेम वही चीज़ होगी, वही काम होगा। यहाँ से 2 हेलोजेंस जाएंगे, जैसे यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए तो यहाँ से फिर मज़ीद 2 हेलोजन जाएंगे, तो ये 1 2 3 4, तो ये कितने हेलोजन रिमूव हो जाएंगे? 4। तो सेम थिंग है। और जब यहाँ से 4 वैलेंसीज चली जाएंगी, जब यहाँ से ये भी चला जाएगा बॉन्ड, ये भी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ देखिए कि टेट्राहेलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जिंक, यहाँ पर हमने यूज़ किया था अल्कोहलिक KOH। टेट्राहेलाइड का मतलब है 1 2 3 4 हेलोजेंस ऑन द विसिनल कार्बन्स। ये नहीं कि आपके पास हेलोजन, अगर मैं ये कहूँ कि 2 हेलोजन यहाँ लगें, 2 हेलोजन हमारे यहाँ लग जाएं और मैं कहूँ जी अब इसमें आप ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें नहीं बनेगा। आपको विसिनल कार्बन्स पे ही, आपको सेम कार्बन के ऊपर ही चारों, मतलब एक विसिनल पोजीशंस पर, विसिनल एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर आपको ये चारों हेलोजेंस चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें आपके पास ये एडजेसेंट कार्बन्स हैं, इनके साथ आपके चारों हेलोजेंस लगे हुए हैं। जिंक डस्ट के साथ करेंगे, हीट करेंगे, तो आप देखिए पहले हमारे ये ऊपर वाले कोई से भी ले लीजिए, कोई से भी 2 हेलोजेंस रिमूव हो गए तो पहले डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और जो हेलोजेंस रिमूव हुए 2 Cl वो जिंक के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बना लिया। इस कंपाउंड का अगर आयोपैक नेम देखें तो 1 2 है, तो 1122 टेट्रा क्लोरो ईथेन। ईथेन क्यों लिया? क्योंकि इसमें 2 कार्बन्स हैं। अब जो प्रोडक्ट बनी है वो है 1 2
1,2-डाइक्लोरोईथीन, राइट। अब रिएक्शन हमारा इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर अभी भी डबल बॉन्ड मौजूद है जो कि बहुत रिएक्टिव है। अनसैचुरेशन मौजूद है क्योंकि अनसैचुरेशन जो अब जहाँ होती है वो रिएक्शन अभी मज़ीद हो सकता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो आपके पास दोबारा से जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और जो आपके पास यहाँ पर ये 2 क्लोराइड है ये भी निकल जाएंगे और यू विल गेट द रिस्पेक्टिव इथाइन। ठीक है, आपके पास इथेन था, यू विल गेट इथाइन। अगर आपके पास यहाँ पर ब्यूटेन की चेन के साथ टेट्राक्लोरो होगा तो आपको ब्यूटाइन मिल जाएगा। यानी कि आपको जो भी आपने यहाँ यूज़ किया है कार्बन नंबर वैसा ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो दिस इज़ द मेथड फॉर द preparation of alkynes. Now comes towards the प्रॉपर्टीज़ एल्काइन की बच्चों मैंने आपको बताई, अभी शुरू में भी बताई हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दी क्या है ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड बुक में भी देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है। फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस एंड नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। तो जैसे जैसे मैंने आपको उसमें भी समझाया था कि जैसे जैसे हम चेन में नीचे आते जाते हैं, हायर मेंबर्स होते जाते हैं, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं वो इंक्रीज़ करती हैं और डेंसिटी भी इंक्रीज़ करती है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो जो शुरू में गैसेस होते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विड, और जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज़ करती है वो दे आर बिकमिंग सॉलिड्स। स्पेशली दे आर नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर एंड डिजॉल्व रेडिली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट मीन्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इथाइंस की इनकी गार्लिक लाइक ऑडोर है। एल्काइंस जो है रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अब आ जाइए हम इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं। रिएक्टिविटी कैसे है कि हमें मालूम है कि अगर हमारे पास अनसैचुरेशन है तो ऑब्वियस ही बात है कौन से रिएक्शंस होंगे? एडिशन रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस होंगे? एडिशन रिएक्शंस। एडिशन मींस ऐड अप होना। आपके पास अनसैचुरेशन मौजूद है, आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि आसानी से ऐड अप कर लेंगे किसको? अब हम देखें हमारे पास आपके रिएक्शन में आपको दिए गए हैं 2, एक एडिशन ऑफ हेलोजेंस दिया गया है और एक आपको दिया गया है रिएक्शन विद KMnO4, राइट। 2 ही रिएक्शंस हैं। तो पहला रिएक्शन देखिए, एल्काइंस ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजेंस। आपके पास एल्काइन है यहाँ पर और इसमें 2 हेलोजेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास सबसे पहली प्रोडक्ट क्या बनेगी? 1,2-डाइक्लोरोईथीन। ईथीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और 2 क्लोराइड अच्छी एट अ टाइम ऐड नहीं होंगे, एक साथ ऐड नहीं होंगे, एक स्टेप में नहीं होंगे। ये भी आपका 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। 1,2-डाइक्लोरोईथीन और ये आपका भी रिएक्टिव है और अनस्टेबल है और ये फ़ौरन से इसमें मज़ीद 2 और क्लोरीन ऐड होंगी और वी विल गेट बैक द टेट्राक्लोरो। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको शायद समझ आए कि ये लास्ट में जहाँ हमने टेट्राक्लोरो का पढ़ा था डीहाइलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, तो ये देखा जाए तो हमें ये टेट्राहेलाइड से हमें हासिल हुआ एल्काइन और यहाँ पर हमें एल्काइन से वापस हमें हासिल हो गया टेट्रा हेलो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक तरह से ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है, रिवर्स में है। आपने सेल्फ असेसमेंट है, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइन एंड ब्रोमीन, व्हाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल। तो आप कैन यू राइट दिस रिएक्शन? यस यू कैन राइट दिस रिएक्शन। कैसे लिखेंगी आप लिखेंगी CH, आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे ब्रोमीन। सो आपको सबसे पहले क्या प्रोडक्ट मिलेगी? सॉरी, 1,2-डाइब्रोमोईथीन। इसका नाम क्या है? 1,2-डाइब्रोमोईथीन, राइट। उसके बाद आपका ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? इसी में 1,2-डाइब्रोमोईथीन में क्योंकि अभी गुंजाइश है हमारे पास, यहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कि इट कैन ऐड फर्दर 2 molecules, 2 atoms of bromine. So right, bromine will be added on the adjacent carbons on that carbon which contain the double bond, right. These 2 bromines will add up here, right, here. So we get the which product? Tetrabromo. How many halogens? 1, 2, 3, 4 halogens are there. So this product is called 1, 2, तो 1, 1, 2, 2 tetrabromoethene, right. समझ आ गई आपको
ठीक है, अब आप मेरा ख्याल में अब आप आसानी से एडिशन कर सकते हैं और टेट्रा हेलो प्रोडक्ट बना सकते हैं. नाउ कम टूवर्ड्स द सेकेंड रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन इज़ रिएक्शन विथ KMnO4. आपको याद है कि हमने एल्कीन में KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन किया था? जी बिल्कुल किया था. हमने एल्कीन का रिएक्शन किया था जिसमें हमने कहा था कि व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विथ KMnO4 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अकर्स ऐड होते हैं इसमें अक्रॉस द डबल बॉन्ड एंड द पिंक कलर ऑफ KMnO4 और पर्पल कलर इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग द रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कीन एज नोन एज बेयर्स टेस्ट. राइट, तो आपके पास यहाँ पर 2 OH ग्रुप आके एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हो गए थे. दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकोल. ग्लाइकोल मीन्स यहाँ आपके पास एल्कोहलिक ग्रुप्स हैं 2. This reaction is used to test the presence of an alkene. Alkene means double bond and its test is known as Bayer test. Same आपके पास यहाँ पर अल्काइन में भी बच्चों इसी तरीके से KMnO4 के साथ इन्होंने रिएक्शन बताया, लेकिन फ़र्क क्या है कि अल्काइन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एल्कलाइन एक्वा सोल्यूशन ऑफ KMnO4, लेकिन ये रिएक्ट करती है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 टू गिव ऑक्जेलिक एसिड. अब आप यहाँ देखें, वहाँ 2 OH ग्रुप पर ऐड हुए थे क्योंकि डबल बॉन्ड था. यहाँ पर आपके पास हाउ मेनी OH ग्रुप होंगे? 4 होंगे क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है. तो अब ये 4 O निकालने के लिए जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है O. O इज़ गोइंग टू बी ऐड इन दैट ग्रुप. सो अब आपके पास KMnO4 है और KOH है और ये दोनों एल्कलाइन क्योंकि ये आपकी बेस है तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो K2MnO4 4 ऑक्सीजन ये जो आपके पास निकले ना ऑक्सीजन, इनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है, और 2 वाटर. दिस ऑक्सीजन विल इज़ हाईली रिएक्टिव एंड इज़ गोइंग टू ऐड अप इन दिस ट्रिपल बॉन्ड. राइट, यू कैन सी फ्रॉम हेयर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर आपके पास वो एटॉमिक ऑक्सीजन है एंड 2 वाटर. और आपके पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गए? वहाँ एल्कीन में 2 थे, यहाँ पर 1 2 3 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गए. इसका नाम आप कह सकते हैं 1 1 2 2 टेट्रा हाइड्रोक्सी ईथेन. टेट्रा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं. टेट्रा हाइड्रोक्सी ईथेन इज अनस्टेबल कंपाउंड. It loses 2 water molecules to form glyoxal which finally oxidize to oxalic acid. क्या हुआ अब यहाँ पर कि ये आपका अनस्टेबल मॉलिक्यूल था. ये अनस्टेबल है. अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी शायद बताया कि ऑक्सीजन प्रेफर टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड. ठीक है, जब वो सिंगल बॉन्ड बनाती है तो वो ऑब्वियस ही बात है कि वो फ़ौरन से डबल बॉन्ड वाले प्रोडक्ट में आने की कोशिश करती है. तो यहाँ पर उसने कैसे कोशिश की कि उसने अपने से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकाल दिए. जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाले हैं तो आपके पास यहाँ पर बन गया 2 डबल बॉन्ड बन गए. अगर आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकालें तो अगर आप ये देखें कि हमने ये H यहाँ से गए और ये 2 H यहाँ से गए तो कितने हो गए? H2O 2 वाटर निकल गए. तो जब ये सब निकल जाएंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा. इसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल. अब मज़ीद इसमें हमने एडिशन, क्योंकि हमारे पास 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे, 4 O थी हमारे पास. यहाँ देखें यहाँ हमारे पास कितने O है? 4 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन ने ऐड करके यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाई. तो फिर 2 ऑक्सीजन ऐड करके हमारे पास यहाँ 2 OH यहाँ O लग जाएगा, यहाँ O और यहाँ O लग जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी? ऑक्जेलिक एसिड. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमारी क्या प्रोडक्ट बन गई है? ऑक्जेलिक एसिड. राइट, तो हमारे पास के बाद आ जाइए यूजेस ऑफ इथाइन एसिटिलीन. अब इथाइन हम कहाँ यूज़ करते हैं? इन ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये इथीन भी कर रही थी. फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप्स, पॉलीविनाइल ईथर्स और रबर के लिए. राइट, सेल्फ असेसमेंट देख लीजिए. सेल्फ असेसमेंट में आपके पास है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड और आपको हेलोजेंस नज़र आ रहे हैं, बल्कि आपको नज़र आ रहे होंगे 2 2s are 4 हेलोजेंस हैं. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? टेट्रा हेलो प्रोडक्ट बन जाएगी. ठीक है, आपके पास 2 स्टेप प्रोसेस होगा. पहले 2 हेलोजेंस जाएंगे और फिर उसके बाद 2 हेलोजेंस और जाएंगे. इसी तरह सेम क्लोरीन भी ऐड करेगी. ठीक है, नाउ अब मैं समझ सकती हूँ कि मेरे बच्चे अब ये सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं. उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो गया. स्किल्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, और उसके बाद ये आपका है कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ,
जिसमें है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हमने समझा, जिसमें हमारे पास कितने थे, सिंगल बॉन्ड, अल्कीन, अल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है। इसमें हमारे पास जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। उसके बाद प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्कीन्स प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइंस जो हमने आज पढ़ा, प्रिपेयर्ड हुआ बाय डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड एंड डिहेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों को ये सही तरह समझ आ गया होगा। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट उस वक़्त मैंने स्किप किया, वो मैं आपको अभी दोबारा बता देती हूँ। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में था कि राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइन एंड ब्रोमीन, वाई दिस रिएक्शन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द अनसेचुरेशन। तो बेटा आपको याद होगा कि अनसेचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 2 मेथड यूज़ किए थे, जिसमें हमने एक दफ़ा ब्रोमीन यूज़ की थी और एक दफ़ा KMnO4 के यहाँ पर एल्कीन में, जिसमें था कि ये कलर डिस्चार्ज हो जाता है, इसमें KMnO4 का पर्पल कलर, पिंक कलर, और ब्रोमीन सोल्यूशन का भी डीकलराइजेशन हो जाती है, यूज एज अ सिंपल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन। सो अल्काइन ऑल्सो गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। तो आपके पास दोनों मेथड्स हैं टू चेक द अनसेचुरेशन, ब्रोमीन के साथ और KMnO4 के साथ। चलें, मेरा ख्याल में अब आप लोग ये कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आ जाइए एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में प्लीज़ आप लोग ये देखिए, आपको जो भी इसमें क्वेश्चन में कोई मुश्किल नज़र आती है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, इंशाल्लाह कल हम ऐसा करेंगे कि हम इसको एक एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेंगे आप बच्चों के साथ। जिन बच्चों का आज नहीं पढ़ पाए तो वो दोबारा देख लें, जो चीज़ मिसिंग है वो हम रिपीट कर लेंगे। और जैसे हमारा सब इससे 100% आपको समझ आ जाएगा ये चैप्टर, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।